I apologize for the interruption. Allow me to introduce myself. I'm Ribs Jones, the collector of Pune, and this is my wife, Jennifer. How do you do? I am Savitri. This is Fatima. It's a pleasure. You know, our government has been trying to bring education to the girls of this country for quite some time. Unsuccessfully. Perhaps we know our people better. Miraculous. It's not a miracle, madam. We all have the ability. What makes the difference is how we choose to use it. Indeed. This is our vision, and we are just following it. The vision of your husband? You seem to know a lot about us. Of course. We've been keeping an eye on you. Oh? What's your name? My name is Mukta Sarve. What are you writing? Mukta, क्या लिख रही हो बताओ? She has written an essay about her personal experience. I can translate it for you. No. Perhaps she can read it for us, in her own language. पढ़ के सुनाओ मुक्ता. वेद अगर ब्राह्मणों के लिए है, तो उन्हें उनको धर्म मानकर उनका पालन करना चाहिए. इसका मतलब यह होता है कि हमारे लिए कोई भी धर्म पुस्तक नहीं है. तो भगवान, आपके तरफ से आया हुआ ये कौन सा धर्म है जो हमारे लिए है? Shabash. Thank you, sir. Please tell your husband to come meet me. I may be of some assistance to him. Thank you. अंग्रेजी भाषा का प्रचार सीधे संस्कृत पे वार है. हमें संस्कृत को बचाना होगा. अगले 1 घंटे तक तो मेरी परछाई नहीं हिलने वाली. मैं भी कहीं नहीं जा रहा. भगवान के बनाए हुए विधान से छेड़छाड़ मत कर. नरक में जलेगा. स्वर्ग में बैठे भगवान से आपका तो सीधा संपर्क है ना. तो उन्हें कहिए कुछ देर तक सूरज को छिपा दे. तुम भगवान को ललकार रहे हो? नहीं, उस भगवान पर सिर्फ आपके अधिकार को और आपके बनाए हुए धर्म को. ब्राह्मण को सिखाएगा धर्म क्या होता है? आस्था का विषय है धर्म, तर्क वितर्क का नहीं. जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है. एक व्यक्ति ने देखा कि पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा. उसने तर्क किया और उसी की वजह से उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, ग्रेविटी. हमारे वर्ण आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूं कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है. आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया. पंचायत में चेतावनी देने के बाद भी उसने स्कूल खोल दिया. पंडित जी, समय आ गया है कि हम संपूर्ण महाराष्ट्र से ब्राह्मणों को बुलाएं. उसके बाद ज्योतिबा और सावित्रीबाई से निपटेंगे. विनायक जी, ज्योतिबा तो केवल दिया जला रहा है.
उसमें तेल तो अंग्रेजी सरकार भर रही है। Jyotiba Phule, the man with a mission. Thank you. I believe you called for me. Indeed I did. Please, sit. Thank you. Ah, Jennifer. Thank you, my dear. Will you have tea? No, thank you, sir. मजिस्ट्रेट रिव्स ने बताया कि लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरक्की में हर धर्म, हर जात और हर वर्ण की भागीदारी हो, यानी सभी को सरकारी नौकरी का अवसर मिले। लेकिन उसके लिए सभी को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होना जरूरी है और मुश्किल यह है कि आधुनिक शिक्षा केवल ऊंची जाति के लोगों तक ही सीमित है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई शिक्षा नीति तैयार की है, लेकिन उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कंपनी के सर्वे से पता चला कि भारत में छोटी जाति के लोग और महिलाएं पढ़ना ही नहीं चाहते। Current state of affairs has left the Governor General rather disappointed. However, I believe you can change that. Sugar, dear. I have seen your school, Jyotiba. Can you make more? I am in the process of opening 4 more schools in Pune. That simply won't do. 5 schools won't make any difference at all. 25. 25 schools would be a good start. I'm glad you think like this. And I believe in what you're suggesting. So please help me get more funds from your office, and I'll open 24 new schools. Right. Think over it. Pune will be a first city to have such a model. And I'm sure you will get a big pat on your back from Lord Dalhousie. No doubt, Jyotiba. However, I'm afraid I must disappoint you. Tax revenues of late have been low. Even the office you see before you is running in losses. No, I'm afraid our funding such a project, however much I would love to make it so, would be simply impossible. रिव्स ने बिना किसी सरकारी मदद के ज्योतिबा फुले को 24 स्कूल और खोलने का सुझाव दिया। उस सुझाव में ज्योतिबा फुले को एक अवसर दिखा। I understand. Apart from the funding, there are a couple of more things you could help me with. एजुकेशन उनकी प्राथमिकता है तो स्वयं पैसे क्यों नहीं लगा रहे? तुमसे क्यों कह रहे? ये प्राथमिकता लॉर्ड डलहौजी की है और रिव्स के पास ये मौका है कि वो डलहौजी की नजरों में ऊपर उठ सके, और हमारे पास ये मौका है कि हम पूरे देश में क्रांति ला सकते हैं। तो अब तुम बची 20 एकड़ जमीन भी बेच दोगे? ये कोई मैं आवेश में आकर नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता था वो लोग पैसे नहीं लगाएंगे। मुझे तो रिव्स से कुछ और ही चाहिए था। हमारी कंपनी का नाम होगा पुणे कमर्शियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। हम रेलवे और टनल के कंस्ट्रक्शन में लेबर सप्लाई का काम करेंगे। ये देखो, मुक्ता साल्वे के ऐसे का अंग्रेजी अनुवाद है ये। अगले हफ्ते के पूना ऑब्जर्वर में छपेगा ये। साथ ही हमारी स्कूल के बारे में भी छपेगा। ये तो हमें और स्कूल्स खोलने में मदद करेगा। लगान 6% से 12% कर दी गई है। लक्ष्मी जब घर से जाती है मेरे लिए उससे बुरा समाचार नहीं होता। लक्ष्मी नाराज है कि हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। पंडित जी, पेट की लड़ाई के आगे धर्म नहीं। ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष अंग्रेजों से 4000 रुपए मिलते थे। ज्योतिबा ने उसके विरुद्ध कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। ये गाज हम पे भी गिरेगी। आज एक लड़का आया था, नारायण लोखंडे, 8 साल का है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहता है। अच्छा है, अब से हमारे स्कूल्स में लड़के भी होंगे।